अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बचपन में जो राग सुना दिल में अब तक बसा है, जिन्हें सुनकर चांद हंसते और सूरज ढलते हैं। हंसते चांद और ढलते सूरज को देखकर आओ सूफी की कथा ढूंढने चलते हैं। Sufism or Tasawwuf, defined as Islamic mysticism, began very early in Islamic history. The practitioners, called the Sufis, traced most of their original precepts from Muhammad through his cousin and son-in-law, Ali. Sufis have been spreading Sufism across continents since the 18th century BC. But it did not transcend in its very ethos of intensification of Islamic faith. It has made itself our very own. Amidst spice-filled smoke and under the flapping of pigeons who coo the call of prayers, we walked on the streets and climbed the terraces, brushing across flea people but not so friendly animals. भैया, no, don't shout. आखिरी, don't move. Wait. देख मैं कुछ नहीं कर रही, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. We took our exploration inside the carved and embellished doors of masjids and dargahs, only to land up at the resting place of one of the most famous Sufis of the Indian subcontinent. या निज़ामुद्दीन सरकार। कदम बढ़ा ले, हदों को मिटा ले, आजा खाली पल में पी का घर तेरा, तेरे बिन खाली आजा खाली पल। सफर के बेबुनियाद मजहमतों के बाद रोशनी का चिल्का यूं आया, खुदा के दरबार में सजदा किया और सदके में प्रश्न और उत्तर दोनों को पाया। Sayyid Muhammad Nizamuddin Aulia stressed love as a means of realizing God. Believing in the piousness of this place, a lot of people come here to tie the Mannati Dhaga. It was under his aura that we came rubaru to one of the most soulful tools of name that comes when you think of Sufi music is that of Nizami brothers. It was their nephew who was our window to the world of Sufi music. Safan also introduced us to the soulful Sufi nights that happened every Thursday. डैडी भी क्लासिकल सिंगिंग करते हैं। अब मेरे दादा जो थे ना, हाँ जी, वो सितार प्लेयर थे। अच्छा वो सितार प्लेयर थे। आपने बहुत सारे गाने सुने होंगे। बावर्ची फिल्म देखी हमने? हाँ गोराई जो गाना उसमें, अच्छा उसमें मेरे दादा सितार प्ले करे। अच्छा। The chords of Sufi tunes strike a way to deepen your relationship with the Creator. We can feel it with the beats of Khusro, Bulle Shah, Nusrat Fateh Ali Khan, or modern musicians like Harshdeep Kaur and Rahat Fateh Ali Khan.
It spans its presence in countries like Egypt, Palestine, Pakistan, and Kazakhstan. With Sufi rhythms, the world has heard and felt the fakiri from the world itself. क्या हुआ कि ये ख्वाजा अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह जब हजरत निज़ामुद्दौला रहमतुल्लाह अलैह पीसफुल पैगाम लोगों को देना चाहते थे तो लोग सुनते नहीं थे। अच्छा। तो हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, हजरत अगर आप इजाज़त दें तो मैं डपली बजाकर इन लोगों को इकट्ठा करूं, क्योंकि उस वक्त पर हमारे हिंदुस्तान में ये ट्रेडिशन था कि हम लोग गली गली में जैसे नुक्कड़ वगैरह ये सब चीज़ें बहुत फेमस थी उस वक्त पर, तो लोग बड़ा ध्यान से चीज को सुनते थे। तो हजरत निज़ामुद्दौला रहमतुल्लाह ने पहले तो नाराजगी दिखाई, लेकिन फिर आपने कहा अगर बुराई के रास्ते से अच्छाई का रास्ता मिलता है तो उसमें कोई गीत, संगीत और स्वर की इनायत जो दिखने में सूफी का पूरा अफसाना लगते हैं, वो पूरी कहानी की रूहानी सत से केवल रूह का ही ताल्लुक रखते हैं। Sufism has not limited itself to music. There is a lot more to it than that. जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूफीज़म जो है वो इस्लाम की स्पिरिट है, ठीक है, यानी सुपीरियर क्वालिटी का नाम, इस्लाम की सुपीरियर क्वालिटी का नाम सूफीज़म से बताऊंगा। तो सूफीज़म में देखिए सबसे बड़ी चीज़ है आता है ज़िक्र। ज़िक्र में है कि आप मालिक का नाम अपनी ज़बान से ले रहे हैं, जिसको जपना कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है सूफीज़म में। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये सब चीज़ें आपने सुनी होंगी, ये अलग की बातें, ये अलग चीज़ें हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप सूफीज़म के अंदर जब भी आएंगे आपको ज़िक्र करना होगा। On the Purana Killa Road in the central Delhi stands a 784-year-old dargah of Hazrat Shil Abu Bakr, popularly known as Matka Pir. Many people visit this dargah and offer a matka after their prayer is granted. The Gaddi Nashin of the dargah told us the part of story that we have been waiting to hear. सूफीज़म एक तरीके से है फकीर, और फकीरी का मतलब ये नहीं कि हम जैसे हम भीख मांगते, वो नहीं। फकीर अल्लाह का फकीर, उसको सूफी जो अल्लाह से मांगता है और लोगों को देता है, वो बिल्कुल सूफी संत महात्मा जी। सूफी संत महात्मा जी, इन सबको हम एक ही कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि इन सबका काम वही है। अच्छा। सूफीज़म जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ही है कि इस्लाम फॉलोवर जो वही सूफी है। अगर कोई हिंदू धर्म से तो हम उसको संत कह सकते हैं, महात्मा कह सकते हैं। तो सूफीज़म का मतलब है अपने आप को फना करना और लोगों को भला करना, ईश्वर की राह में अपने आप को फना करना और लोगों की भलाई में लगे रहना। सूफीज़म जो होता है आज की डेट में लोग बड़ी बड़ी अंगूठियां पहन रहे हैं, मालाएं डाल रहे हैं, वो सूफीज़म नहीं है, वो शोपीस है। सूफीज़म तो बड़े सादे से रहते हैं, सूफी लोग बड़े सादे से रहते हैं, उन्हें मतलब नहीं, वो सिर्फ अपनी इबादत में लगे रहते हैं, अपनी लॉ में लगे रहते हैं। जो भी उनके दर पे आ गया परेशानी लेकर के, उन्होंने दुआ की, उसकी परेशानी दूर हो। What we figured out after our journey outside was that it was a journey within. Sufism is your connect with God. In whichever religion you follow, wherever in the world you are, and whatever you believe in. जिस तरह एक कपड़े में अलग अलग रंग के धागे होते हैं, लेकिन जब वो मिलते हैं तो एक मुकम्मल कपड़ा तैयार होता है।
निभाने पड़े। क्या दिया और बदले में हमें क्या मिला? कुछ हरफन मौला वक्त दिया और खुदा की खुदी में खुद ही को पा लिया।